Good morning, children. Today we will be doing your unit number 10 and unit number 12 from the grammar book. Okay, these are very simple exercises about noun that we read in last class also. Okay, so it will be easier for us to understand. Okay, let's start with the chapter as in the unit. Okay, today we will be studying about countable and uncountable nouns. As the word suggests, countable nouns are those which can be counted, and uncountable are those which cannot be counted. So it is as simple as that. Let's read it. Ducks and swans are swimming in water. The woman added ginger and basil leaves to tea. She bought bread and butter. I like watching butterflies. Ishu ate 2 slices of bread and drank milk. Okay. We can count ducks and swans, but we can't count water. Okay. हम डक और सॉन को काउंट कर सकते हैं कि कितने डक्स हैं या कितने स्वॉन्स हैं, बट हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते. ओके, काउंट मीन्स 1 2 3 4 लाइक दैट. हम वाटर को मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो भी है, बट वी कैन नॉट काउंट इट लाइक 1 2 3. देयर कैन नॉट बी 1 वाटर, 2 वाटर और 3 वाटर. We can count women and basil leaves, but we cannot count tea. We cannot count tea, right? कि कितनी टी है, 1 2 3 टी कितना टी है. We cannot count like that. In the same way, we can't count bread, butter and milk. We cannot count bread, butter and milk. We can count bread slices, but we cannot count bread. Okay. We can say a loaf of bread, a cube of butter and a piece of ginger. Then it will be correct. But these are uncountable nouns. Cube of butter are countable. Loaf of breads are countable. Pieces of ginger are countable. But only ginger is uncountable. Okay. Let's see what is in the exercise now. Write C for countable and U for uncountable nouns. I will do 2-3 examples and rest you will do for the homework. Very simple exercise, children. Chair, countable. Rice, uncountable. Cake, uncountable. Honey, uncountable. Okay. Money, countable. Alright, that's it, children. Let's see the next exercise. Okay, tip of the day. We can't make plural of uncountable nouns. We don't say sugars, waters. Okay. जो uncountable noun होते हैं children, उनका plural नहीं होता है. Okay. For example, waters, honeys. जैसे कि हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा था, honey was uncountable. So honeys नहीं होता. It is always honey. Okay. Now, second tip, we don't use a or an with an uncountable noun. We don't say an oil. We don't say a rice. Okay. हम uncountable noun के साथ a या an नहीं use करते हैं. Another simple exercise, children. Let's see this thing first. Uncountable nouns can't be counted. In order to specify the quantity of uncountable nouns, we use words like a little, some, much, a glass of, a piece of, a slice of, a pinch of, a heap of, a bottle of, etc. See, हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी क्वांटिटी जताने के लिए या बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, अ पाइंट ऑफ ऑयल. पाइंट मीन्स स्मॉल बॉटल. देन अ heap of sand, a pinch of salt. Pinch means एक चुटकी salt. Okay, a slice of bread, a slice of cheese. Okay, like these. We use these suffixes for all the uncountable nouns. Let's see here. How do we find कि suitable uncountable noun लिखना है हमें. ठीक है, इसमें uncountable लिखना है हमें noun.
ध्यान से देखिएगा. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. Fifth one, we buy dash from petrol pump. We buy petrol from petrol pump. 10th one, we bought a kilo of dash for making biryani. बिरयानी किससे बनती है? Rice. Then give me a cake of dash for washing hands. चिल्ड्रन, केक का मतलब सिर्फ ब्रेड वाला केक नहीं होता. केक का मतलब होता है कि एक क्यूब या फिर एक क्यूबॉइड की शेप में जब किसी प्रोडक्ट को हम सेट कर देते हैं उसको भी हम केक कहते हैं. लाइक सोप केक, यानी कि सोप साबुन होता है नहाने वाला, कपड़े धोने वाला, वो एक क्यूब या क्यूबॉइड की शेप में होता है ना, या फिर और भी कोई शेप में हो सकता है, बट उसको हम सोप केक कहते हैं. ओके, सो इन दिस 14th वन इट इज टेलिंग गिव मी अ केक ऑफ soap for washing hands. All right. 15th, save dash to save trees. Okay, save paper. See, there is a word bank here. You can use these words over here also. All right, so save paper to save trees. These are examples. Now let's jump on to the नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो हमें ये अभी समझ आया चिल्ड्रन आपको काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है. जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे वाला. लेकिन जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, लेट्स सी जेंडर नाउ. व्हाट इज अ जेंडर? हम कहते हैं ना मेल, फीमेल, वुमन, मैन, गर्ल, बॉय. दीज आर genders. Okay, everything in this world has a gender. Every living thing at least has a gender. Okay, let's see. An ox pulled the cart. The queen wore the beautiful crown. Dr. Gagan Arora, Dr. Sweena Arora are renowned doctors. Sneha and Paras are intelligent students. In sentence 1, ox is of masculine gender, यानी कि वो मेल जेंडर का है. ओके, एंड कार्ट इज ऑफ न्यूटर जेंडर. न्यूटर मीन्स नो जेंडर. In sentence 2, queen is of feminine gender and crown is of neuter gender. That is no gender. Okay, because king also wear crown, queens also wear crown. It doesn't have a gender. Dr. Gagan Arora and Dr. Sweena Arora are name of female. Okay, sorry, Gagan Arora is the name of male and Sweena is the name of female doctor. Okay, which is given here, but we are using doctor for both of them. All right. In sentence 4, Sneha is the name of a female and Paras is the name of a male, but we are using students for both of them. Okay, नाउ हमें ऑलरेडी पता है कि जो मेल नाउन के बारे में हमें डिनोट करता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और जो हमें फीमेल के बारे में डिनोट करता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. नाउ लेट्स रीड दिस वन. देयर आर मेनी वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर. जब भी कोई नाउन किसी चीज़ को डिनोट करेगा, फॉर एग्जाम्पल कूलर, चेयर, एलमिरा एक्सेट्रा, वो एक न्यूटर जेंडर में होगा. NEUTER, न्यूटर जेंडर.
Okay, not masculine or feminine but neuter gender. There are, okay, such words are called common gender. Example, student, teacher, आर्टिस्ट एंड फ्रेंड. जिनका न्यूटर जेंडर होता है हम उनको कॉमन जेंडर भी कहते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट एक्सरसाइज. This is the first exercise, children, of the chapter. Out the words. Okay. Just a second, children. Okay, sort out the words and put them in the right treasure box. These are treasure box of golden color which are given here. You have to find right words from here and segregate them into these titles here. ठीक है. अभी हमें बताना है कि मैस्कुलिन कौन सा है, फेमिनिन कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है एंड कॉमन कौन सा है. ठीक है. न्यूट्रल और कॉमन में क्या डिफरेंस है चिल्ड्रन? न्यूट्रल जो है वो किसी थिंग के लिए यूज़ होता है, कॉमन जो है वो लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है. ओके, लेट्स सी. आई विल डू दिस विद यू सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा अबाउट ऑल द जेंडर्स. लेट्स सी. लीडर, कॉमन. हेड मिस्ट्रेस. सी, मिस्ट्रेस इज अ लेडी, तो हेड मिस्ट्रेस यहाँ पे आएगा. कज़न, कज़न कॉमन है. कज़न बॉय भी हो सकता है, कज़न गर्ल भी हो सकती है. ठीक है. मिल्क मेड, मिल्क मेड इज़ अ वुमन, यानी कि जो लेडी आपके घर मिल्क लेके आती है उसको हम मिल्क मेड कहते हैं. वुड, वुड इज़ अ न्यूटर जेंडर. एम्परर, एम्परर चिल्ड्रन हमारा मेल होगा, मैस्कुलिन होगा. एम्परर मतलब किंग. ओके. एम्प्रेस होता है फेमिनिन. एम्परर का ऑपोजिट यानी कि फीमेल जेंडर होगा एम्प्रेस. ओके. फ्लावर, फ्लावर होगा, आई गेस फ्लावर न्यूटर जेंडर होना, कॉमन जेंडर होना चाहिए. नो, फ्लावर चिल्ड्रन न्यूटर जेंडर होगा. ग्रूम, ग्रूम मीन्स दूल्हा. ग्रूम हमारा मैस्कुलिन होगा. क्वीन, क्वीन हमारी फेमिनिन होगी. डॉक्टर, डॉक्टर हमारा कॉमन जेंडर होगा. ठीक है. क्योंकि फीमेल एंड मेल डॉक्टर्स दोनों के लिए हम डॉक्टर ही यूज़ कर सकते हैं. एथलीट, एथलीट हमारा चिल्ड्रन होगा कॉमन जेंडर. ठीक है. नेक्स्ट है मिल्कमैन. मिल्कमैन होगा हमारा मैस्कुलिन. अभी हमने मिल्क मेड पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो हमने मिल्क मेड लिखा था, तो मिल्क मैन हमारा होगा. इसमें देखो मैन आ भी रहा है, इसमें लिखा है ना मिल्क मैन. ऑलराइट. मिल्क मैन होगा मैस्कुलिन जेंडर. देन नेबर, नेबर होगा हमारा कॉमन. ठीक है. बॉक्स, बॉक्स होगा न्यूटर. ब्राइड, ब्राइड होंगी फीमेल. ब्राइड मतलब दुल्हन. हेडमास्टर, हेडमास्टर होंगे मेल. ठीक है. पेपर होगा हमारा न्यूटर. और हमारा होगा किंग, मैस्कुलिन होगा किंग. ठीक है. एम्प्रेस, मैंने बताया था ना एम्परर का जो फीमेल होता है उसे हम एम्प्रेस कहते हैं, तो ये आएगा यहाँ पे. और बार्बर होता है नाई, जो बाल काटता है, तो वो आएगा यहाँ पे बार्बर. आई विल नॉट राइट एज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ. लेट्स इरेज दिस. ओके चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूट्रल, कॉमन एंड मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर्स के बीच में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज.
अंडरलाइन द नाउन एंड राइट द जेंडर। इसमें आपको नाउन्स अंडरलाइन करने हैं और उनका जेंडर बताना है। लेट्स सी। माई नेफ्यू इज़ एन आर्टिस्ट। नेफ्यू एंड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है न्यूटर, नेफ्यू है मेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। द लायनेस, लायनेस है हमारी फीमेल। अटैक्ड द मेयर, मेयर है हमारा मेल। मेयर, मेयर होता है घोड़ा। ओके, अ काइंड ऑफ अ ब्रीड ऑफ हॉर्स वुड बी कॉल्ड मेयर। डॉग्स लिव इन कैनल्स। डॉग्स एंड कैनल्स। कैनल्स होगा हमारा न्यूटर, डॉग्स होगा हमारा मैस्कुलिन। ओके, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम। Let's see the next page. Children, this is the last thing that we are going to do today and you have to do all this for your homework. There is a long weekend, so आप मुझे 15th तक भी ये दे सकते हो करके, नॉट एन इशू, लेकिन ये आपको सब एक्सरसाइज करके मुझे भेजना है। ओके, आपको अभी देखो इस वाली एक्सरसाइज में अभी यू हैव टू मैच द ऑपोजिट जेंडर। सी, nephew and niece, fox and vixen। फॉक्स का जो फीमेल होता है उसको हम विक्सन कहते हैं, ठीक है। स्टेप फादर, स्टेप मदर, विडोअर, विडोअर। ओके, नाउ rest you will do on your own. I will do one more for you. Monk and nun. In this one, change the gender of the underlined word and rewrite the sentence. इसमें आपको जो underlined word है ना उसका sentence का उसका gender change करके आपको दोबारा sentence लिखना है। I will do only the first one. Rest all you will do. He was a great emperor. तो इसका हो जाएगा he का हो जाएगा she, was a great emperor का हो जाएगा empress। चिल्ड्रन, मैं आपको इसके साथ कुछ पिक्चर्स भेजूंगी ऑन व्हाट्सएप। आई विल सेंड द पिक्चर्स, यू विल हैव टू चेक आउट दैट पिक्चर। उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेल एंड फीमेल कॉम्बिनेशंस हैं, उसको आपको याद करना है। नॉट लाइक एकदम से याद करना है, लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर उसको रिवाइज करते रहना है सो दैट आपको वो याद हो जाए। बिकॉज ऑल दीज आर लाइक यू नो मेड ऑलरेडी। ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड है, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो फॉक्स का जो फीमेल है वो विक्सन ही होगा, उसको और कुछ नहीं कहेंगे हम। सो इट इज़ प्री डिसाइडेड। Okay, so I will send you some pictures on WhatsApp. You all will check that out and you all will learn them over the period of time. Alright, you will always keep all these things with you so that you can remember it again and again whenever is needed. Alright children, so that's it for today, and if there is any problem, you can please ask me. Thank you so much children.